are reading chapter 6, Rural Administrations of Civics or Social and Political Life first. So let's start from page number 51. Maintenance of land records. You saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their fields had been shifted. Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? Are there records that show who owns what land in the village? Let's find out how this is done. Measuring land and keeping land records is the main work of the Patwari. The Patwari is known by different names in different states. In some villages, such officers are called Lekpal. In others, Kanungo or Karmachari or village officer, etc. We will refer to this officer as Patwari. Each Patwari is responsible for a group of villages. The Patwari maintains and updates the record of the village. The map and the corresponding details from the register on the next page are a small part of the records kept by the Patwari. The Patwari usually has ways of measuring agricultural fields. In some places, a long chain is used. In the above instance, the Patwari would have measured both Mohan's and Raghu's field and compared them with the measurements on the map. If they did not match, then it would be clear that the boundary of the fields has been changed. Find out the team used for the Patwari in your state. If you live in a rural area, find out how many villages does the Patwari of your area maintain land records of? How do people in the village contact him and her? Here some questions are given. So you will find this. The Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area. This is done from the records that are kept. And this is why it's important for the Patwari to regularly update these. Farmers may change the crops grown on their fields or someone may dig a well somewhere. तो आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में फील्ड की बाउंड्री को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई. क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो अपना मामला पीसफुली सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे रिकॉर्ड होते जिनसे यह पता चल जाए कि विलेज में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है. तो लैंड को मेजर करना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मेन वर्क होता है. अलग अलग स्टेट्स में इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है. कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, तो कहीं रूरल ऑफिसर या विलेज ऑफिसर, तो कहीं कानूनगो भी कहते हैं. तो हम यहाँ लैंड का लेखा जोखा रखने वाले ऑफिसर के लिए पटवारी शब्द का, है ना, पटवारी वर्ड का यूज कर रहे हैं. प्रत्येक पटवारी कुछ विलेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नेक्स्ट पेज पर दिए गए मैप और उसके अनुसार बने रजिस्टर के आप पूरा एक्सप्लेनेशन वहां देखिएगा. तो ये पटवारी द्वारा रखा गया विलेज के लोगों की लैंड का रिकॉर्ड, है ना, जमीन के रिकॉर्ड का एक पार्ट है. आमतौर पर पटवारियों के पास खेत मेजर करने के डिफरेंट तरीके होते हैं. कई जगहों पर वो एक लंबी, है ना, लॉन्ग आयरन की चेन कहा जाए, है ना, जंजीर, लोहे की जंजीर का यूज करते हैं जिसे जरीब कहते हैं. और ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के फील्ड को मेजर करके ये देख सकता है कि वो गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं, है ना. अगर वो मैप से नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसको पता चल जाता है कि बाउंड्री खिसका कर फील्ड की सीमा बदली गई है, बाउंड्री चेंज की गई है. तो पटवारी फार्मर्स से भूमि कर भी, मतलब लैंड का जो टैक्स होता है ना, वो भी इकट्ठा करता है और गवर्नमेंट को अपने एरिया में उगने वाली, है ना, होने वाली वो क्रॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. तो ये वर्क अब वो अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है. तो इस पेज में आप देख सकते हैं ये यहाँ पर दिया हुआ है, खसरा रिकॉर्ड दिया हुआ है, पटवारी ने दिया है. ठीक है, ये देखिए, आप इसे देखें और समझने की कोशिश करें. और यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं कि हु ओन द लैंड साउथ ऑफ मोहन फील्ड. इसको
देखकर समझकर और कोशिश करें देने की। मार्क द कॉमन बाउंड्री बिटवीन मोहन्स एंड रघुज लैंड्स, हु कैन यूज फील्ड इन field number 3, what information can one get for field number 2 and field number 3। ठीक है, तो ये आप पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसलिए जरूरी है कि वो उनको टाइम टाइम पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार क्रॉप्स ग्रो करते हैं, है ना, तो उसको भी चेंज कर देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कहीं वेल डिग कर लेते हैं, मीन्स कुआं खोद लेते हैं। तो इन सब का रिकॉर्ड रखना गवर्नमेंट के रिवेन्यू डिपार्टमेंट का ये वर्क होता है, मींस राजस्व विभाग। ठीक है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट। तो इस डिपार्टमेंट के सीनियर पर्सन जो होते हैं, सीनियर पीपल, है ना, इस वर्क का सुपरविजन करते हैं। ठीक है, तो इंडिया में सारे स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, बटे हुए हैं। तो जमीन से जुड़े जितने भी मामले हैं, है ना, जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन डिस्ट्रिक्ट को और भी छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, सब डिवाइडेड। ओके, तो जिले के, डिस्ट्रिक्ट के ये सब डिविजन्स को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका, है ना, एक्सेट्रा। सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। ठीक है, रिवेन्यू ऑफिसर होता है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और उसे हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कह सकते हैं। और उनके अंडर में रिवेन्यू ऑफिसर को इन हिंदी तहसीलदार कहते हैं। ठीक है, तो उनके बहुत सारे मामले को निपटाना होता है, तो वो पटवारी के वर्क का सुपरविजन करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और रिवेन्यू इकट्ठा होता रहे। ठीक है, वो ये भी देखते हैं कि फार्मर्स को अपने रिकॉर्ड की कॉपी या नकल आसानी से मिल जाए। वे स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ने पर कास्ट सर्टिफिकेट भी जारी करते हैं। रिवेन्यू ऑफिसर के ऑफिस में जमीन या लैंड से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स को अक्सर अपने फील्ड के मैप और रिकॉर्ड की जरूरत होती है। इसके लिए उनको कुछ पे करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, शुल्क। तो फार्मर्स को इसकी कॉपी पाने का अधिकार है। कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते हैं, लोगों को इसको पाने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। कई स्टेट्स में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के ऑफिस में रख दिए जाते हैं ताकि वे इजीली लोगों को उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से वो दुरुस्त होते रहे, मतलब अपडेट होते रहे। तो आपको क्या लगता है फार्मर्स को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती होगी? तो नीचे दिए गए यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं, उनको पढ़िए और उनको पहचानिए। ठीक है, उन मामलों को पहचानिए, केसेस को। ठीक है, जिनमें लैंड के रिकॉर्ड कंपलसरी होते हैं, और ये भी बताइए कि ये किस लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सी अ फार्मर वांट्स टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर। एक फार्मर दूसरे फार्मर से जमीन खरीदना चाहता है। एक फार्मर अपनी क्रॉप्स या फसल दूसरे को सेल करना चाहता है, बेचना चाहता है। एक फार्मर को अपने लैंड में वेल डिग करने के लिए बैंक से लोन चाहिए। एक फार्मर अपने फील्ड के लिए फर्टिलाइजर खरीदना चाहता है। एक फार्मर अपनी फील्ड या अपने लैंड अपने बेटे और बेटियों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ देखें, अ डॉटर विश एक दिया हुआ है यहाँ, सी अ डॉटर विश, एक बिटिया की, एक बेटी की चाह। फादर inherited our house from his father and everyone says he will leave it to brother. But what about me and my mother? To expect a share in my father's home is not very womanly, I am told. But I really want a place of my own, not dowry of silk and gold.
विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ, हमारा क्या? मतलब विरासत में क्या होता है कि पिता की जायदाद बेटे को मिल रही है, बेटे की फिर उसके बेटे को मिल रही है, तो बेटियों का क्या और माँ का क्या? बता दिया गया है मुझे कि पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए डाउरी मीन्स दहेज में रेशम और सोना। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक पोयम दी हुई है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड लॉ हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। ओके।